dear students, today we'll start our chapter 3rd of class 5th science, that is the skeletal system. Now what is the skeletal system? There is a hard framework made up of bones inside a body. This framework is called skeleton. When you feel your hands, your legs, you feel something hard inside your body. What is that? It is the bones. So the system of the bones, the framework of the bone inside the body is known as the skeleton, and all the bones of the skeleton makes up the skeletal system. जितनी भी bones present होती है skeleton में, वो सब मिलके बनाती है the skeletal system. So when we are born, जब हम born होते हैं, there are more than 350 bones present in our body. हमारी body में 350 से ज़्यादा bones होती है. But as soon as we grow up, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, these bones get longer and they get mixed, fuse हो जाती हैं आपस में, and an adult person, adult human being has around 206 bones. 350 की कितनी हो जाती है? 206. Now what is the function of skeletal system? Why is this system present in our body? क्यों present होता है body में? Because without the skeletal system, our body will have no shape, no support. So first function is to give shape and support. अपनी body को shape देने के लिए और support provide करने के लिए skeletal system जो है वो present होता है. Second, to protect soft organs. Soft organs like brain, lungs, okay, heart, all these are soft organs. These are present inside the body. So to protect this soft, this delicate organs, this skeletal systems helps us to protect them. Third is provide movements of the body parts. Because of the bones only we are able to move our body parts. जो अपनी bones होती है उसमें muscles attach होते हैं, and with the help of these bones and muscles we are able to move our body parts. One last function of skeletal system is long bones contain bone marrow. Now what is this bone marrow? Now you know the bones are hard from outside. जो bones होती है वो hard होती है outside से, but inside they are soft and spongy. Soft होती है अंदर से और spongy होती है, and some of the bones have this jelly-like substance which is known as bone marrow. Bone marrow क्या करता है? It continuously produces the red blood cells को produce करता है, and in case अगर आपकी body में कोई सी bone fracture हो जाती है तो this bone marrow helps to repair that damaged bone. Okay, so this was the function of skeletal system. Now the skeletal system is made up of main 5 parts. What are these 5 parts? First is skull, backbone, ribs or rib cage, limbs and girdles. These are the 5 parts जिससे मिलके बना होता है पूरा skeletal system. So now we'll read about skull, rib cage, all of these in detail. So firstly we'll read about the skull. Now the skull is made up of 8 flat bones. जो skull होता है वो 8 flat bone से बना होता है. जो ये upper part है, round part है, that is made up of 8 flat bones. और ये 8 flat bone ऐसे join होते हैं like a jigsaw puzzle. जैसे एक puzzle होता है वैसे ही आपस में ये bones interlocked होते हैं. Okay? Now what is the function of skull? We know that in our head what organ is present? Brain. So to protect the sensitive brain, this skull is present in a body. ये जो skull होता है ये brain को protect करता है. Now can you see these holes in the skull? आपको holes दिख रहे हैं at the place of eyes, nose, mouth, ears, सारे holes दिख रहे हैं? Yes, these are known as the sockets, जहाँ हमारे organs जो है वो fit होते हैं. The skull has spaces for eyes, ear, nose and mouth. ये सारी spaces होती है, सारे sockets होते हैं जहाँ पे हमारे organs, eyes, ear, nose, mouth सारे fit होते हैं. The facial region is made up of 14 bones. The lower jaw is the only movable joint in the skull. और जो अपना facial region है, जो face part है, जो cheeks है, lower jaw है, ये सब मिलके बना है 14 bones है, 14 facial bones है. और सारी जो skull की जितनी भी bones होती हैं वो move नहीं करती है, सिर्फ एक ही जो bone है वो move करती है, that is the lower jaw. जो lower jaw होता है जो हमको बोलने में help करता है, which helps us to speak and eat, chew the food. So the lower jaw is the only movable joint in the skull. बाकी जो जितनी भी bones होती है वो fixed होती है, immovable होती है. Okay, so this was the first part of the skeletal system. Now we'll read about the backbone or the vertebral column. अब इसको backbone भी बोलते हैं, vertebral column भी बोलते हैं और spine भी बोला जाता है. So this vertebral column, it is made up of 33 round, thin and flat bones. ये जो backbone है, it is made up of 33 राउंड बोन, 33 छोटी छोटी बोन से मिलके बना होता है. एंड दिस 33 बोन्स हैव अ
होल इनसाइड, जो 33 बोन्स होती है इनके सेंटर में बीच में एक होल होता है जिसके थ्रू एक स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। स्पाइनल कॉर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ नर्व्स जो पास होती है ये वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। अब ये टोटल होती है 33। आउट ऑफ दिस 33 ये स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, जहाँ से स्कल ख़त्म होता है वहाँ से ये स्टार्ट होता है बैकबोन, और ये जाता है पूरा कम्प्लीटली टिल द हिप पोर्शन, हिप रीजन तक जाता है। सो द फर्स्ट 7 ऑफ दिस 33 वर्टिब्रेज आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, जो गर्दन का पोर्शन होता है, नेक पोर्शन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट 5 मेक्स द टेल बोन इन द हिप रीजन, और इन 33 में से जो लास्ट 5 है वो प्रेजेंट होता है हिप रीजन में, जो बनाता है द टेल बोन। नाउ द नेक्स्ट इज द रिब केज। नाउ व्हाट इज दिस रिब केज? रिब केज इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द हार्ट एंड द लंग्स। जो लंग्स होते हैं और हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। द रिब्स आर द लॉन्ग कर्व्ड बोन्स, जो रिब की बोन्स होती हैं दे आर वेरी लॉन्ग एंड कर्व्ड बोन्स, कर्व्ड होती हैं, एंड दे आर जॉइंड टू द बैकबोन एट द बैक, बैकबोन से जॉइन होती है पीछे, एंड इन द फ्रंट दे आर जॉइंड टू द बोन नोन एज स्टर्नम। ये जो आपको सेंटर में बड़ी सी बोन दिख रही है दिस इज नोन एज द स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन। तो पीछे जो बोन्स होती है रिब्स की वो जॉइन होती है बैकबोन से, एंड इन द फ्रंट दे आर जॉइंड टू द स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। जो रिब केज होता है इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, जिसमें से 10 पेयर्स स्टर्नम से ज्वाइन होते हैं आगे, और 2 जो पेयर्स होते हैं रिब्स के दे आर द फ्लोटिंग रिब्स, दे आर नॉट ज्वाइन टू द स्टर्नम। ओके, सो दिस इज द रिब केज। द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। नेक्स्ट इज द limbs and girdles. Now what are limbs? The arms and legs are called limbs. जो हमारे arms होते हैं और legs होते हैं they are known as the limbs. The arms are called the forelimbs and the legs are known as the hind limbs. Okay? जो arms होते हैं उनको forelimbs बोलते हैं and जो legs होते हैं उनको hind limbs बोलते हैं. Now जो arm होता है it has 3 bones और 3 parts. So जो upper arm होता है it consists of only single bone that is known as the humerus. ठीक है, जो अपर आर्म होता है उसमें एक ही बोन होती है दैट इज नोन एज द ह्यूमरस, एंड द लोअर आर्म में 2 बोन्स होती है दैट आर नोन एज द रेडियस एंड उल्ना। रेडियस एंड उल्ना आर द 2 बोन्स। ओके, एंड द रिस्ट एंड हैंड हैज मैनी स्मॉल बोन्स। द अपर आर्म हैज ह्यूमरस, द लोअर आर्म और द फोर आर्म हैज द रेडियस एंड उल्ना, एंड द हैंड्स एंड रिस्ट हैव द मैनी small bones. The upper end of humerus is connected to pectoral girdle. जो humerus का upper part है, this part, it is connected to a girdle which is known as the pectoral girdle or the shoulder girdle. जो upper part होता है humerus का वो एक girdle से connected होता है। जो आपको फ्लैट बोन दिख रही है शोल्डर वाली, दिस इज नोन एज द गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, जिससे ह्यूमरस बोन का अपर एंड जो है वो ज्वाइन होता है। देर आर 2 गर्डल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी, वन इज द पेक्टोरल गर्डल एंड अनदर वन इज द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो होता है वो हिंड लिम्स में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जो 4 लिम्स होते हैं उसमें 3 बोन्स होती है, 3 मेजर बोन्स होती है दैट आर द अपर आर्म में होती है ह्यूमरस, जो लोअर आर्म या फोर आर्म है उसमें होती है रेडियस या उन्ना, एंड द हैंड एंड द रिस्ट हैव मैनी स्मॉल बोन्स। और जो ह्यूमरस का अपर एंड होता है इट इज कनेक्टेड टू अ गर्डल नोन एज द पेक्टोरल गर्डल। नाउ द नेक्स्ट विल रीड अबाउट द हिंड लिम्स। हिंड लिम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। द हिंड लिम्स और लेग्स हैव 3 बोन्स। अगेन द जो आर्म में हमने पढ़ा था 3 बोन्स होती है, वैसे ही जो लेग्स होते हैं अगेन दे हैव द 3 मेजर बोन्स। ओके, फीमर और थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। जो थाई होती है हमारी दिस इज द नोन एज द फीमर बोन। फीमर FEMUR, इसको थाई बोन भी बोलते हैं, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, और हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। द लोअर लेग हैज 2 बोन्स नोन एज टिबिया एंड फिब्यूला। जो लोअर लेग है हमारा इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। जो बड़ी वाली है दिस इज नोन एज टिबिया एंड द स्मॉलर वन इज नोन एज द फिब्यूला। Okay, the upper leg has thigh bone or femur, the lower leg has tibia and fibula, and again the leg जो foot होता है हमारा, जो ankle होता है, it consists of many small bones. The upper end of femur is joined with pelvic girdle which protects the kidney and bladder. जैसा हमने 4 limbs में देखा था कि जो humerus का upper part है it is connected to pectoral girdle. Similarly जो यहाँ पे femur है
या जो थाई बोन है इट इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो हिप पोर्शन में गर्डल है, दिस इज नोन एज द पेल्विक गर्डल, और जो फीमर का अपर एंड होता है वो इस गर्डल से अटैच होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो दीज वर द 5 पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। नाउ विल रीड अबाउट द joints. The place where two bones join together is called a joint. ऐसा प्लेस जहाँ पे दो बोन्स ज्वाइन होती हैं, दैट प्लेस इज नोन एज द जॉइंट. The bones at each joint are held and supported by strong band-like tissue called ligaments. Now can you see this green color in the picture? Yes, this is the ligament. Now what are ligaments? Ligaments are the like rubber bands. They are flexible and strong, and what do? They hold the two bones together. Okay, they are strong band-like tissue like rubber bands. They hold the bones together. Okay, now we'll read about the types of joints. So the joints are mainly of two types. One is the movable joint and the other one is immovable joint. Movable joint are those that can move, like our knees, elbows, they can move, so they are movable joint. And immovable joint which cannot move, like the skull, the bones of skull cannot move, so they are the immovable joint. Now we'll read about the types of movable joint. There are 4 types of movable joint. First is the hinge joint. A hinge joint allows movement of bones only in one direction. Now can you bend your knees and elbows backwards? Backwards bend कर सकते हैं knees को या elbows को? No, we can only bend them forward or upwards. Okay, so this hinge joint allow the movement of joint or bones only in one direction. सिर्फ one direction में allow करता है, और इसका जो movement होता है वो कैसा होता है, like a door. जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं, open करते हैं, close करते हैं, like that only this type movement is found in the hinge joint. वैसे ही हमारा जो elbow होता है हम upwards ले जाते हैं और downwards ले जाते हैं, बस ऐसा movement होता है. Okay, so this was the hinge joint. Second is the ball and socket joint. In this type of joint, one end of a bone is round like a ball. This ball-shaped bone fits in the socket of another one. और जो इसमें क्या होता है कि जो एक एंड होता है बोन का that is like a ball, और जो दूसरा बोन होता है उसका एंड होता है सॉकेट जैसा, उसमें स्पेस होता है. तो दिस बॉल शेप्ड बोन फिट्स इन द सॉकेट में फिट हो जाता है, एंड इट अलाउज द मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन. जैसे आपने क्रिकेट में बॉलिंग करते समय देखा होगा बॉलर को, तो उनका जो हैंड है वो पूरा 360 डिग्री मूव होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज द पिवट जॉइंट. Pivot joint. The skull is connected to first two vertebrae of backbone by pivot joint. जो हमारा skull होता है it is connected to the backbone or the vertebral column. तो उसके जो ऊपर के 2 vertebrae होते हैं it is connected to the skull. It only allows movement side to side. आप अपना जो face है सिर्फ 2 डायरेक्शन मूव कर सकते हो, या तो ऊपर नीचे कर सकते हो या साइडवेज कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द pivot joint. तो pivot joint है वो सिर्फ साइडवेज साइड टू साइड ही मूवमेंट अलाउ करता है. कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल और बैकबोन के बीच में, जहाँ वो दोनों मीट होते हैं, उनका जॉइनिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन रिस्ट एंड एंकल. जो हमारी रिस्ट होती है और एंकल्स होते हैं वहाँ पे ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, और ये जो जॉइंट होता है वो स्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है बैक एंड फोर्थ या साइडवेज. आप अपनी बोन्स को, रिस्ट की और एंकल की बोन्स को स्लाइड कर सकते हो बैक एंड फोर्थ और साइडवेज. Okay, so these were the 4 types of joints, movable joint present in a body. Now we'll read about the muscles. Muscles. Our bones are covered with soft tissues called muscles. अपनी जो bones होती हैं, all the bones, they are covered with the soft tissue that is known as muscles. The human body has more than 640 muscles. Like bones, we have 206 bones. Muscles, we have more than 640. The muscles are connected to the bones by tendons. और जो muscles होते हैं वो bone से connect होते हैं with the help of tendons. जैसे वहाँ पे ligaments देखा था हमने, ligaments are used to connect to bones. 2 bones को join करने के लिए ligament use होता है, वैसे bone और muscle को join करने के लिए tendon use होता है. These are also soft stretchable fibers, strong bands of stretchable fiber जो help करते हैं muscle और bone को join करने में. Now these are of 2 types, voluntary muscles and involuntary muscles.
वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं? जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं. दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल. दे आर अटैच टू द बोन्स, हैंस दे आर कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स. और ये जो होते हैं वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं, वी कैन कंट्रोल देम. लाइक आवर हैंड में जो मसल्स होते हैं, लेग्स में जो मसल्स होते हैं, वी कैन कंट्रोल देम. सो दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स. और ये हमारे स्केलेटन या बोन से ज्वाइन होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द स्केलेटल मसल. और जो इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, दीज मसल डू नॉट वर्क एट आर विल. अपनी मर्जी से वर्क नहीं करते हैं, अपना कंट्रोल इस पर नहीं होता है. लाइक आर स्टमक एंड हार्ट हैव इनवॉलेंट्री मसल. जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा हार्ट होता है, दे आर मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है. ओके, नाउ विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल फाइबर. के जो मसल बनते हैं वो कौन से फाइबर से बनते हैं. सो फर्स्ट इज द स्ट्रिएटेड मसल फाइबर. ऑल वॉलेंट्री मसल आर मेड ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर. वॉलेंट्री अभी बताया, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है. लाइक यार जो लेग्स में और आर्म्स में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ दिस स्ट्रिएटेड मसल फाइबर. नेक्स्ट इज स्मूथ मसल फाइबर. इनवॉलेंट्री मसल्स आर मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एट द एंड्स. और जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं वो उससे सारे इनवॉलेंट्री क्या बनते हैं? मसल्स बनते हैं. जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो स्मूथ मसल फाइबर से बनते हैं. और ये लॉन्ग होते हैं और नैरो. नैरो मतलब साइड से पतले होते हैं और लॉन्ग होते हैं ये वाले मसल. द लास्ट टाइप ऑफ मसल फाइबर इज द कार्डियक मसल फाइबर. द कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. जो कार्डियक मसल फाइबर होते हैं उससे सिर्फ हमारा क्या बनता है? ओनली द हार्ट. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वर्क कंटिन्यूसली. जो हमारे कार्डियक मसल फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे वर्क कंटिन्यूसली. क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो भी क्या 24 आवर्स वर्क करता है, फुल टाइम वर्क करता है. तो जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे ऑल्सो वर्क कंटिन्यूसली. नाउ विल स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ अ चैप्टर, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ मसल्स. के जो हमारे मसल्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं. Muscle cells are the only cells in the body which have ability to contract. Contract means shorten and relax. Relax means lengthen. मतलब ये muscle cells ऐसे ही muscle cells होते हैं बॉडी में, सिर्फ ऐसे muscle cells होते हैं जो शॉर्ट हो सकते हैं और लॉन्ग हो सकते हैं. इसके अलावा कोई से भी मसल ऐसे नहीं होते हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग हो सकते हैं. लेकिन सिर्फ मसल सेल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं. Thus muscles move the body parts by contraction and relaxation. जो मसल्स होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं by the process of contraction and relaxation. The muscles work in pairs to cause movements. और जो मसल्स हैं वो पेयर्स में काम करते हैं, मतलब दो मसल्स एक साथ काम करते हैं कोई भी पार्ट को मूव करने में. फॉर एग्जाम्पल ऑफ आर हैंड. अब हैंड में जो है वो दो मसल्स हैं, एक होता है बाइसेप और एक होता है ट्राइसेप. तो जब आपका हैंड स्ट्रेट है, आपका हैंड स्ट्रेट है, तो जो आपका बाइसेप वाला मसल है वो लॉन्ग है, रिलैक्स कर रहा है वो मसल. और जो ट्राइसेप वाला मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, छोटा हो रहा है. जब आप उसको बेंड करते हो तो जो आपका बाइसेप वाला मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, और जो आपका ट्राइसेप वाला मसल है वो लॉन्ग हो रहा है. सो लाइक इन दिस वे द मसल्स वर्क. ऐसे पेयर्स में जो है वो मसल्स वर्क करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक रिलैक्स करता है, और तभी बॉडी का जो कोई भी पार्ट है, जॉइंट है, वो मूव हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वी हैव completed our chapter 3. I hope you have understood the chapter.